in the last class actually I have tried to complete the types of non-probability sampling method, and due to the shortage of time I couldn't complete this snowball sampling. So I will try to complete it, and then we will move on to two basic concepts, that is parameter and statistic, and sampling and non-sampling error, and then I will try to cover up what I can say, the concept of index numbers. Okay, am I clear? So let's start. So what is snowball sampling? Can anyone just try to tell me? Any idea? Snowball sampling. Okay. So just write with me first. So the other name of snowball sampling is also called network or chain referral sampling. So what is snowball sampling? So in this sampling, in this method, what happens at the first stage, or firstly, the researcher identifies a small number of respondents having a set of characteristics of interest, of research. Then after collecting the required data from those respondents, those are asked to identify others. Having same features. So are you getting what snowball sampling is? I mean, in this case what happens, first the researcher will try to collect or try to draw a sample of a limited number of respondents based on the purpose of the research. Okay, this particular point is implying that is having a set of characteristics of interest of research means based on, I mean,
based on the purpose of the research, I mean what is the objective behind doing that particular research. Based on that objective, the researcher first tries to identify or tries to collect data from a small number of respondents. Then after the data is collected from those respondents, the researcher will ask them to identify for some others having same characteristics or sharing the same characteristics. For example, if I want to understand ki how many, I mean let's say if I want to collect data from drug addicts, rape victims, okay, let's say. So let's say drug addicts. So what I can do in this method, actually I will collect data from the from some of the respondents who are very much addicted to drugs and other sort of uh, medicines, I mean harmful medicines. So I will collect data for them. After collecting data from those persons, those drug addict persons, then I will ask them to tell them the name of others who are also drug addicts. Are you getting the point? Any confusion? So I didn't get the last part. Please explain once more. Okay, no issue, no issue. Suppose Payal, I am just telling you, suppose what happens ki uh, you are a researcher, let's say, and you want to collect information. Suppose I told you to collect information regarding the what I can say, regarding the earnings of a drug addict person. I mean, you know that those who are very much addicted to drugs or other sort of harmful stuffs like wine and smoking. So you know that they spend a lot of money. I mean, whatever they earn, they used to spend on those things, isn't it? So I just asked you to collect me a data of their earnings, those who are drug addicts. So what we will do, you will go to the place and try to collect or try to identify some of the drug addicts from that area and try to collect uh, data regarding their earnings. After collecting data of those drug addicts, you will further ask them ki okay, I have thanks for giving your data or thanks for giving your details regarding your earnings. So can you please suggest me others who are also drug addicts that you may know. So they will then give you some names, maybe the name of their relatives, maybe the name of their what I can say, kith and kins, friends, those who are also addicted to drugs. So then you will go to those persons and try to collect details from them. Am I clear? So that is snowball sampling actually. Okay. So just try to write one example like collecting data from drug addicts rape victims, etc. So write one major advantage of this method. What is the major advantage? From this point, a lot of MCQs are asked. This major advantage. So try to make note of it. Okay. This point is very important.
So right, this method is used when the target population in the sample is very small. Oh, sorry, not very small, it's very hard or difficult to reach. And when the items in the population can share a common trait that makes them hard to identify. Okay, so just have a look at this particular point. This point is very important actually, and it is also important from the exam point of view. You will get a lot of MCQs from this particular point of snowball sampling. So just try to have a look. So it's stating that one of the primary advantages of snowball sampling is that it is mostly employed when our target population in the sample is very hard or difficult to reach. As you can see that, take the case of the drug addict persons. So it's very difficult to identify who are drug addicts, and even if you can identify, there is a possibility that that person will be reluctant to give you his or her information, isn't it? So when the target population in the sample is very hard or difficult to reach or locate, and when the item in the population can share a common trait that makes them difficult to identify. So there is a possibility, the second part, it is stating that there is a possibility that one drug addict person can give you information about his earning, about his what I can say, about his household activities and stuffs. But and he can also share, but I mean, there is also a possibility that he will be reluctant to share his friend's name, because he will be like, no, I can't share anyone's name without taking his or her consent. Or maybe even if he shares his friend or relative's name who is also a drug addict, there is a possibility that that person, I mean, will not be available, or will be reluctant to give you any sort of answers or any sort of information. Am I clear? So this is snowball sampling. Is it okay? Any confusion? Yes or no? नो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ। तो पहले मुझे ये बताओ, वो जो मैंने ड्रग एडिक्ट वाला जो एग्जाम्पल जो समझाया था, वो समझ में आया क्या?
एम आई ऑडिबल ना? थोड़ा तुम लोग रेस्पॉन्ड करो, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, नो मीन्स वी हैव नो कन्फ्यूजन. ओके, अच्छा, तो यस बोलो ना. ऐसे तो समझ नहीं पाऊँगा. अच्छा ठीक है. तो अभी हम लोग थोड़ा एक दो आई मीन 4 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, फिर हम लोग इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे आज. तो आज का टारगेट रहेगा कि इंडेक्स नंबर मोस्टली कवर कर लें, मोस्टली. सो अभी हम लोग चलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर. क्या है पैरामीटर और स्टेटिस्टिक? कोई बोल सकता है? कोई आइडिया है? क्या होता है पैरामीटर और स्टेटिस्टिक? एनी आइडिया? चलो एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ. चलो, सो मान लो वही एक स्कूल है, ठीक है? सॉरी, ये एक स्कूल है, हाँ, और इस पे मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक है? 50 स्टूडेंट्स है इस पे. सबका एज लगभग आई मीन किसी का एज सपोज मान लो 10 साल है, किसी का 12, किसी का 13, ऐसे कर करके मतलब मैक्सिमम मान लो कि ये जो स्कूल है इस पे सिर्फ क्लास 10 तक प्रोवाइड होता है, ठीक है? तो किसी का मान लो 9 साल का बच्चा भी है इस पे, हाँ, और किसी का मान लो किसी स्टूडेंट का मान लो 16 है एज, ठीक है? तो ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर हम लोग सेंसस मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? सपोज हम लोग जानना चाहते हैं जो स्कूल जो है, ये जो पूरा जो स्कूल जो है, सपोज मान लो ये स्कूल है. इस स्कूल में जो बच्चों जितने बच्चों लोग हैं, जो 50 जो स्टूडेंट्स है इस पे 50 स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन 50 स्टूडेंट्स का मीन एज क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन एज ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स who are studying in this particular school? तो अगर हम लोग सेंसस मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे हम लोग? हर एक बच्चे के पास जाएंगे, जाके पूछेंगे कि बेटा तुम्हारा एज क्या है? कोई बोलेगा कि सर मेरा एज 9 है, कोई बोलेगा मेरा एज 12 है, कोई बोलेगा मेरा एज 16 है. ऐसे कर करके तुम लोगों को एक डेटा पॉइंट मिलेगा, ठीक है? ऐसे कर करके एक डेटा पॉइंट मिलेगा. फिर तुम लोग मीन निकालोगे, है ना? तो वो जो मीन निकलेगा, सपोज मान लो मीन जो हमारा निकला है मीन एज, इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, सपोज मान लो, ठीक है? इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, मीन एज जो निकला. तो वो जो मीन एज जो होगा वो क्या है? वो जो मीन एज जो निकला है वो पूरा जो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन मतलब 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका मीन एज है न्यू. मान लो कि न्यू का वैल्यू निकला है सपोज मान लो 12, ठीक है?
सो ये जो 12 जो है, ये क्या है कि हम लोग सेंसस मेथड अप्लाई करके हर एक स्टूडेंट से पूछे कि तुम्हारा एज क्या है, फिर एज का डेटा निकाल के हम लोगों ने उसका एवरेज मीन निकाला। तो एवरेज मीन निकल के आया कि ये जो स्कूल जो है, इसका मतलब बच्चे का, हर एक बच्चे का लगभग एज 12 होगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज। बट सपोज मान लो किसी और इन्वेस्टिगेटर आए, किसी और रिसर्चर आए और उन्होंने सेंसस मेथड यूज़ ना करके उन्होंने सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया तब, ठीक है। तो सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, वो ज़्यादा मतलब ईच एंड एवरी बच्चों को, हर एक बच्चों के पास नहीं जाएंगे कि बेटा तुम्हारा एज क्या है पूछने के लिए। वो क्या करेंगे, ही विल टेक ए सैम्पल आउट ऑफ इट। तो उन्होंने सपोज मान लो कि यहाँ से एक सैंपल निकाला, एक छोटा सा सैंपल उन्होंने निकाला और उस सैंपल में सपोज मान लो, सैंपल साइज को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तुम लोगों को मालूम है। सपोज मान लो वहाँ से उन्होंने 25 स्टूडेंट्स को निकाला, सपोज मान लो 25 स्टूडेंट्स को निकाला और 25 स्टूडेंट्स का एज का डेटा लिया, फिर उसको एवरेज किया, आई मीन एरिथमेटिक मीन निकाल के आया। सपोज मान लो उस जो सैंपल का जो मीन है उसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, मान लो, लेट्स एज्यूम। तो एक्स बार का वैल्यू सपोज मान लो आया है 11.52 ईयर्स। समझ में आ रहा है चीज़ें। ये जो न्यू है, ये न्यू जो निकला है, न्यू है मीन एज ऑफ द स्कूल ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल बाय यूजिंग सेंसस मेथड। और ये जो एक्स बार जो निकला है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड और इट शोज द एवरेज एज और द मीन एज ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल बाय टेकिंग आउट ए सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। सो हम ये जो चीज़ है, जब सेंसस मेथड अप्लाई करके हम लोग जब निकालते हैं मीन एज, निकाला जो है मीन एज, ये इसको हम लोग बोलते, इसका जो इसको जिससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग न्यू से डिनोट कर रहे हैं, ये इस न्यू को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, समझ में आया। बट हम लोग देखो, जो सैंपल जो निकाला उसका मीन एज को हम लोगों ने एक्स बार से डिनोट किया। एक्स बार का वैल्यू 11.52 आया है सपोज, बट उसको डिनोट किससे कर रहे हैं, एक्स बार से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो इस एक्स बार को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस एक्स बार को हम लोग, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। समझ में आया ये चीज़। बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं पॉपुलेशन। तो हाँ, मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, पैरामीटर स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का लिखो, इट कम्स फ्रॉम पॉपुलेशन। समझ में आया, ये पॉपुलेशन से निकलता है। जैसे कि हम लोगों ने ये जो न्यू निकाला, ठीक है। और स्टैटिस्टिक क्या होता है, इट कम्स फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, कोई रेस्पॉन्ड करो, मतलब अच्छा, इट कम्स फ्रॉम सैंपल। सो याद रखना, जो पॉपुलेशन मीन जो होता है
और आई मीन पैरामीटर ऑफ मीन, पॉपुलेशन मीन जो होता है, ये चीज़ याद रखना होगा तुम लोगों को। इसको हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, सॉरी। और जो सैंपल मीन होता है, इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर और भी है, बट ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वही मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, बाकी नोट्स में दे दूंगा। पॉपुलेशन वेरिएंस भी होगा एक, आई गेस तुम लोगों को वेरिएंस मीन के बारे में मालूम है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सैंपल वेरिएंस जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से। और एक लास्ट जो है, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे और करते हैं, वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि मैं करवाऊंगा इंडेक्स नंबर के बाद। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पैरामीटर इसका होता है रो, बट सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ है तुम लोगों का। ओके, सो इतना तक समझ में आया, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ से हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर न्यू मेरा निकला है, जो पॉपुलेशन मीन जो निकला है वो 12 निकला है मेरा। मैं यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ, पॉपुलेशन मीन जो 12 निकला है, और जो सैंपल मीन जो है, मतलब सैंपल मीन एज, वो मेरा निकला है 11.52, ठीक है। और मान लो और थोड़ा इजी कर देते हैं, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा और इजी हो जाएगा। सपोज मान लो 11 निकला है, मान लो 11 निकला है, 11.52 छोड़ो, 11 निकला है, लेट्स से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 1। ये जो डिफरेंस जो निकल रहा है, वी कॉल दिस सैम्पलिंग एरर। ये जो डिफरेंस जो निकल रहा है उसको हम लोग सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। बिकॉज क्यों हो रहा है ये एरर? बिकॉज पॉपुलेशन से जो हम लोगों ने एवरेज मीन निकाला, पॉपुलेशन में क्या हुआ, हम लोगों ने सेंसस मेथड यूज़ किया, तो हर एक बच्चों के पास हम लोग गए कि तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारा एज क्या है, मतलब हर एक बच्चों का डिटेल्स लिया हम लोगों ने। बट जब हम लोग सैम्पल ड्रॉ किया तो वहाँ पर सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का डिटेल्स हम लोगों ने लिया, एज डिटेल्स। तो उसके वजह से जो ओरिजिनल जो पॉपुलेशन मीन है जो 12 है, और जो सैंपल मीन है उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो वो जो डिफरेंस जो है उसको हम लोग सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। समझ में आया? और ये डिफरेंस आएगा बिकॉज जब तुम लोग रियल वर्ल्ड पे जब रिसर्च करोगे ना, पॉपुलेशन पैरामीटर जो होता है इट्स ऑलवेज अननोन, ये ऑल टाइम अननोन होता है। जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे तब और भी अच्छे से समझोगे वो चीज़।
तो वो अननोन होता है। तो हम लोग अभी देखो, ये तो स्कूल वाला एग्जाम्पल दे दिया। अगर मैं बोलता कि पूरा देश, मतलब पूरा देश नहीं, पूरा पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं उनका मीन एज निकालो, तो इज़ इट पॉसिबल? तुम लोग निकाल पाते सेंसस मेथड से? इट्स टोटली इम्पॉसिबल, राइट? तब सैम्पलिंग मेथड हम लोगों को लेना ही पड़ता। तो जब तुम लोग जब सैम्पलिंग मेथड फॉलो करोगे ना, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी डेट एन एरर माइट कम अप, an error might come up, or error there is a possibility of an error in the calculation which creates a difference between the parameter value and the statistic value. That particular difference is termed as the sampling error. ठीक है? तो सैम्पलिंग एरर का जस्ट एक फॉर्मूला लिख लो। मैं इस पेज को यूज़ करता हूँ बिकॉज मुझे वो थर्ड वाला पेज उसके लिए चाहिए, इंडेक्स नंबर के लिए। सो इसको रब कर देता हूँ। समझ में आया तो ये चीज़? ना कन्फ्यूजन है? ओके, वेरी गुड। सो लिख लो ये चीज़, छोटा सा, ज़्यादा जस्ट एक फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताओ। मतलब अभी थोड़ा टॉपिक से अलग है और अभी बट थोड़ा अलग है। अच्छा, टॉपिक से बाहर क्या डाउट बताओ, मतलब स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड और? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा टेबल्स। तो मुझे पूछना था कि सर जैसे कि हम रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, सैम्पलिंग भी पढ़ रहे हैं, तो ये कितना डीपली हमें पढ़ना है, कितनी मतलब जैसे क्वेश्चंस जो हैं इनसे कितना अंदर तक पूछा जा रहा है इसमें, देखो तो कैसे पढ़ना है? देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ना, ये ना कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता एक्चुअली। ये इट्स टोटली, मतलब एवरीथिंग व्हाट आई कैन से डेट विल बी माई सजेशन। एक्चुअली मैंने देखो, मैंने खुद एग्जाम्स लिखा है। सो इट टोटली बेस्ड ऑन कि सिलेबस तुम कितना कवर कर रहे हो। वो मतलब देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी इवन, तुम्हारा तो इकोनॉमिक्स है ना, तो तुम जब जैसे कि माइक्रो मैक्रो थ्योरी जब पढ़ोगे, हाँ, जो तुम्हें नवनीत सर पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या कवर कर रहे हैं? दोनों थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही कवर कर रहे हैं। बिकॉज उनको भी नहीं मालूम कि इस साल या फिर जितने भी सालों में एग्ज़ाम होगा उसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन सेट करेंगे। टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सेटर। अगर कोई क्वेश्चन सेटर ऐसा है कि वो बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच पसंद करता है, तो ही और शी मे आस्क फुल ऑन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सर क्योंकि सर हमारा एक सब्जेक्ट भी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें भी सारे सिमिलर टॉपिक्स हैं, थोड़ा डीपली उसमें दे रखा है। हाँ, तो जैसे इसमें थोड़ा शॉर्ट है जो आप पढ़ा रहे हो। नहीं ये शॉर्ट है बिकॉज मैंने जितना ट्रेंड, मतलब मैंने और नवनीत सर ने उसको, मतलब हम लोगों ने एनालाइज किया, हम लोग जितना पढ़ा रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे कि यूजीसी नेट, मतलब हम लोगों का अप्रोच ऐसा है कि तुम लोगों का बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशान, ऐसा टाइप का हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, ताकि तुम लोगों का सीयूईटी के साथ यूजीसी नेट का भी एक प्रिपरेशन हो जाए, जो लोग गेट देंगे सामने उनका भी प्रिपरेशन हो जाए। तो वो सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम में क्या होता है जानते हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, अभी तक पूछे जा रहे हैं, उतना डीपली नहीं जाते। अगर डीपली स्टार्ट करें ना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि सिलेबस ख़त्म हो। और हम लोग पहले सिलेबस कवर करते हैं, देन वी विल सी। बिकॉज जब हम लोग PYQs भी पकड़ेंगे, बट पहले सिलेबस और थ्योरेटिकल क्लियरिटी होना चाहिए पहले। जितना थ्योरेटिकली तुम लोग क्लियर होगे ना, तब मतलब देखो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को PYQs पे बेस पे पढ़ा रहे हैं ना। सो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है ऐसा एक चीज़ दे दे जो कि किसी को ना आए, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया उस चीज़ को। ऐसा होता है कभी कभी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, जैसे एकदम ऊपर से थोड़ी स्किमिंग करके पढ़ें और एक अच्छे से डिटेल में पढ़ें, तो वही मेरा डाउट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको तुम लोग अच्छे से, मतलब उतना तक समझने का कोशिश करो। मैं तुम लोग जो पढ़ा रहा हूँ
इट्स टोटली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल बेसिस. सो तुम लोगों को थ्योरेटिकल, मैं ऑल टाइम सबको, मैं अपने जूनियर्स लोगों को भी बोलता हूँ, थ्योरेटिकली क्लियर होना चाहिए पहले. तुम जितना थ्योरेटिकली क्लियर होगे ना, उतना जितना भी टफ क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन भी दे दे, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम्हारे थ्योरेटिकल क्लियरिटी के वजह से तुम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो. ये मैं खुद से बना के नहीं बोल रहा, इट्स एन एक्सपीरियंस, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को. सो दैट्स वाई. और एक चीज़ बताना चाहता हूँ. हाँ, मैं और नवनीत सर पढ़ा दे रहे हैं तुम लोगों का, और एक मैडम भी है वो भी पढ़ा रही है, पर तुम लोगों को सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. वी कैन ओनली गाइड, ठीक है, बट सेल्फ स्टडी इज़ ए मस्ट. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लो. एक्चुअल वैल्यू और पैरामीटर वैल्यू माइनस स्टैटिस्टिक वैल्यू. ठीक है, जैसे कि मीन के केस में क्या होगा, इफ़ यू कंसिडर द मीन केस, तो मीन के केस में क्या होगा, न्यू माइनस एक्स बार. वेरिएंस के केस में क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. हाँ, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के केस में क्या होगा, रो माइनस आर स्क्वायर. सो ये चीज़ याद करना, इससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी कि सैम्पलिंग एरर का फॉर्मूला क्या है, ऐसे पूछ देते हैं. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था ये, एकदम छोटा सा चीज़ है, इसको कवर किया हम लोगों ने. और लास्ट एक है सैम्पलिंग एरर, एक है और एक कॉन्सेप्ट है नॉन सैम्पलिंग एरर. तो नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, कोई बता सकता है? सैम्पलिंग एरर तो मैंने समझा दिया, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जब हम लोग सैंपल निकालते हैं, एक्चुअली मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लिखाऊंगा. तो जब हम लोग सैंपल निकालते हैं, जैसे कि इस वाले केस में जब हमने सैंपल निकाला, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उस पर कुछ गलतियाँ हो सकता है. सपोज़ मान लो कि ये डेटा निकालने के लिए, मान लो इट इज़ सजेस्टेड कि हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉलो करें, तो डेटा थोड़ा टाइम टेकिंग कम होगा, टाइम कम लगेगा. हाँ, तो हम लोग डायरेक्टली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉलो करके यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों को. बट सपोज़ मान लो तुम लोगों ने वहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग लगा दिया, जो कि एकदम ही इनअप्रोप्रिएट है ना. तो तुम लोगों का जो रिज़ल्ट निकलेगा सैम्पलिंग के टाइम पे, वो फेलाशियस होगा, गलत होगा. आई मीन इट्स नॉट रिलायबल, एफिशिएंट रिज़ल्ट नहीं निकलेगा. तो जब सैम्पलिंग मेथड में कुछ गड़बड़ी है, इसके लिए जब सैम्पलिंग रिज़ल्ट जब निकलता है, जो गलत सैम्पलिंग का रिज़ल्ट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर. सो तुम लोग लिखो, समझ में आया चीज़ या फिर और फिर से समझाओ, बताओ. एक बार वापस बता दीजिए. अच्छा ठीक है, पहले लिख लो. It arises in the processing of data. Sorry. It can
occurred at every stage of planning. And execution of census or something. Yes. Execution of the census. So what are the causes? Causes क्या होता है? Lack of trained investigators हो सकता है. Improper sampling method. and incomplete coverage of the information from the respondents. Okay. तो you are correct. So causes लिख लो. Causes एक है faulty methods of sampling और data collection. फिर फॉल्टी डेफिनेशन भी हो सकता है. मतलब कोई कोई रिसर्च में डेफिनेशन मैटर्स अ लॉट. जैसे कि मैं एक एल्डरली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ अभी. आई मीन अपना पीएचडी रिसर्च उसके ऊपर ही है मेरा. सो वहाँ पर मुझे डिफ़ाइन करना पड़ रहा है कि एल्डरली बोलते मतलब एल्डरली बोलने से मैं क्या समझ रहा हूँ. मेरी रिसर्च में एल्डरली का मतलब क्या है. सो डिफरेंट देश में मतलब अलग अलग देश में एल्डरली का कॉन्सेप्ट अलग होता है. इट डिपेंड्स ऑन द एज. कोई कोई बोलता है कि जो लोग 60 प्लस है वो लोग एल्डरली है. कोई कोई बोलता है कि जो लोग 55 प्लस है वो लोग एल्डरली होता है. सो ये जो फॉल्टी डेफिनेशन मतलब जो हम लोगों का जो जब सैंपल कलेक्ट करेंगे, हम लोग जिसके ऊपर कलेक्ट करने जा रहे हैं सैंपल, उस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पहले. डेफिनेशन मतलब पर्पस भी हो सकता है कि मकसद क्या है उस चीज़ का, उस डेटा को कलेक्ट करने का मकसद क्या है, वो मकसद. फिर उस पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, जो वेरिएबल्स यूज़ होगा, उसका डेटा, उसका जो मीनिंग जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. वहाँ पर कोई भी एम्बिग्यूटी या फिर कोई भी मतलब मैं कैसे बताऊँ, कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लमेटिक या फिर कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए उसके कॉन्सेप्ट को लेकर. अगर डाउट है या फिर वो क्लियर नहीं है तो तुम्हारा जो एरर जो होगा सैम्पलिंग के टाइम पे वो नॉन सैम्पलिंग एरर होने का एक चांसेस हो सकता है. तो वही फॉल्टी डेफिनेशन का मतलब वही है. और एक है जैसे कि तुम में से किसी ने बताया लैक ऑफ स्किल्ड investigators lack of skill investigators and defective data presentation. And printing. सो नॉन सैम्पलिंग एरर का ये कॉजेज़ है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर, जैसे कि तुम में से किसी को प्रॉब्लम था, मतलब ये समझ नहीं पाए. जैसे कि मैं जो ये जो स्कूल वाला जो एग्ज़ाम्पल तुम लोगों को दिया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सैम्पल निकाल रहा हूँ. ये 25 स्टूडेंट्स का मैंने सैम्पल निकाला था, जैसे कि मैंने बोला था तुम लोगों को. तो ये मैंने
ये जो चीज़ है बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखो, तुम लोगों को ये सब सेंस लाना चाहिए। पूछ रहे थे ना, बिकॉज कभी कभी एक छोटा मोटा केस स्टडी देके पूछ सकते हैं कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्रोप्रिएट होगा, तो तुम लोगों को वो सेंस डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख के तुम लोग पकड़ पाओ कि नहीं ये मेथड अप्रोप्रिएट है उस पर, तो वो सेंस तुम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों का थियोरेटिकल कंसेप्चुअलिटी, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और थियोरेटिकल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए तुम लोगों को। That's why I am urging you to first start with theory. So anyways, so जो सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग जो लिया है मैंने, सैम्पल जो लिया है 25 स्टूडेंट्स का यहाँ से, तो वो कौन सा मेथड यूज़ किया हमने? मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड विल बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लोग डिसाइड करना और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि क्यों सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड अप्रोप्रिएट होगा। ये तुम लोगों का एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए इसका आंसर। ठीक है, सो ये नहीं बताऊँगा मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कितना समझे हो। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड अप्रोप्रिएट है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड अगर अप्रोप्रिएट है तो, बट तुम जाके वहाँ पर क्या कर दिया, तुम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड करना स्टार्ट कर दिया, या फिर किसी ने स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर, या फिर किसी ने मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो कि इनअप्रोप्रिएट है इस मेथड के लिए। तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से जो रिजल्ट जो निकलने वाला था मीन एज का, दैट्स रिलायबल बिकॉज दैट मेथड इज करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। But due to the adoption of a faulty sampling method for collecting the data, for collecting the required data, there is a possibility that non-sampling error may occur. And the key prime reason in this particular example is the application or is the employment of a faulty sampling method or irrelevant sampling method. Am I clear? सर Okay. सो हमने अभी सैम्पलिंग, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग पूरा कंप्लीट किया है। अभी थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली हमें जाना चाहिए था एस्टिमेशन थ्योरी में, बट मैंने मतलब नवनीत सर ने बताया कि उन्होंने अभी तक प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाया है। तो अगर वो नहीं करवाया गया है तो इट विल बी बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर स्टेटिस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है, बिकॉज इसके बाद और दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एस्टिमेशन और एस्टिमेटर। तो उसके लिए तुम लोगों को वो सब चीज़ समझना पड़ेगा पहले। तो आई थिंक इंडेक्स नंबर के बाद शायद नवनीत सर क्लास लेंगे, प्रोबेबिलिटी, फिर उसके ऊपर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, उसके ऊपर। तब तक हम लोग अभी इंडेक्स नंबर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर बहुत इजी चीज़ है, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। और इंडेक्स नंबर से मतलब मैथ्स बहुत कम आते हैं, बट क्या आते हैं जानते हो एग्ज़ाम्स में? ज़्यादातर इंटरप्रिटेशंस आते हैं। जैसे कि एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, ऑप्शंस दे देगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑल्सो, थ्योरी है, और एक दो मैथ्स भी हम लोग करेंगे विद ड्यू कोर्स। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स नंबर। तो क्या होता है इंडेक्स नंबर? कोई बता सकता है मुझे? व्हाट इज इंडेक्स नंबर? क्या होता है? एनी आइडिया? Any insight that you like to share?
मेरे साथ लिखो, ठीक है। सो इंडेक्स नंबर क्या होता है? इट इज़ ए statistical device to measure changes in the magnitude of a group of related variables over two different situations with respect to time, geographical location, or other attributes. सो क्या लिखा है मैंने, एक बार तुम लोग पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ। सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड। क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? सो इज़ टू मेजर चेंजेस in the magnitude of a group of related variables over two different situations। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। सो with respect to geographical location, time and other attributes। सो छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ फिर समझ जाओगे। वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जानते हो कोई? व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ मनी? क्या होता है? क्या होता है वैल्यू ऑफ मनी? परचेजिंग पावर। थोड़ा अच्छा ठीक है, परचेसिंग पावर। थोड़ा और स्पेसिफिक वे में बोलोगे तो क्या बोलोगे? एकदम सिंपल, सपोज मान लो तुम एक लेमन को समझा रहे हो तो क्या बोलोगे? हिंदी में बोले तो 1 रुपये से, मतलब 1 रुपये का हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट पकड़ते हैं। 1 रुपये से हम लोग कितना यूनिट हाउ मच वी कैन बाय, वैल्यू ऑफ मनी। जैसे कि मैंने बोला 10 रुपये से मैं एक मान लो एक पेन खरीद सकता हूँ। आई कैन बाई 1 पेन बाई पेइंग 10 रुपीज़। बट अगर सपोज ये मान लो 2022 का बात है, पर अब 2023 में उस पेन का प्राइस हो गया है 20 रुपये। अभी एक पेन खरीदने के लिए मुझे 20 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? वेदर द वैल्यू ऑफ मनी हैज़ फॉलन और इट हैज़ राइजन।
गिरा है या बढ़ा है वैल्यू ऑफ मनी? है सर, हाँ, गिरा है। गिरा है ना, बिकॉज अभी तुम लोग इस 10 रुपये से 10 रुपये जाओगे दुकान पे लेके, दुकानदार तुम्हें भगा देगा कि 10 रुपये में अब कोई पेन नहीं मिलता है, आपको खरीदना है तो 20 रुपये दीजिए वरना चले जाइए, बोल देगा। बिकॉज तो इस 10 रुपये का जो पहले इस 10 रुपये से तुम लोग एक पेन खरीद पाते थे, अब इस 10 रुपये से वो एक पेन भी तुम लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, उसके वजह से तुम लोगों को इससे डबल डबल पे करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी, कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मनी, मतलब ये 10 रुपये से हम लोग कितना गुड्स खरीद सकते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी। तो जब प्राइस बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी गिरता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस बढ़ा 10 से 20 हो गया, तो ऑब्वियसली अब उस 10 रुपये का जो इम्पोर्टेंस है वो घट गया ना, बिकॉज उस 10 रुपये से तुम लोग अब वो पेन खरीद नहीं पाओगे, अब तुम्हें 20 रुपये देना पड़ेगा उस पेन खरीदने के लिए, समझे ना। तो वो जो वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट से हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे कि जो वैल्यू ऑफ मनी जो होता है, जैसे कि इस केस में देख रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक साल बाद वैल्यू ऑफ मनी पूरा चेंज हो गया। 2022 में वैल्यू ऑफ मनी जो था, मतलब 10 रुपये से हम लोग एक पेन खरीद सकते थे, अभी हम लोग को उस सेम पेन को एक क्वांटिटी में खरीदने के लिए हम लोग को 20 रुपये देना पड़ रहा है 2023 में। तो वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये गिरा है, और ये जो है प्राइस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है ना। तो ये जो प्राइस चेंज के वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी जो गिरा है यहाँ पर, उस प्राइस चेंज का मैग्नीट्यूड क्या है, उस मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए वी विल टेक हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स। मेरा बात समझे हो? जी सर। सो इंडेक्स नंबर क्या होता है कि इंडेक्स नंबर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है जो कि मेजर करने में हेल्प करता है कि मैग्नीट्यूड्स, मतलब चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेरिएबल का, जैसे कि प्राइस कितने मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्राइस। हाँ, ओवर द टू सिचुएशन, दो सिचुएशंस है यहाँ पर। टाइम, यहाँ पर सिचुएशन किसके ऊपर बेस है, टाइम के ऊपर बेस है, 2022 2023। तो 2022 और 2023 में जाने के लिए जो प्राइस का जो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है उसको हम लोग इंडेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पर प्राइस का मैग्नीट्यूड होगा, मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ, 10/20/10 इंटू 100। तो कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 200%। इट्स नॉट परसेंटेज, मतलब it's sort of, it's showing the magnitude actually, what is the magnitude of the change in price, ठीक है। it's not the change in price, rather it's showing the magnitude of the change in price। समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, चेंज नहीं दिखा रहा है, बट प्राइस जिस वे में चेंज हो उसका मैग्नीट्यूड क्या वो दिखा रहा है। तो वो चीज़ याद रखना। सो होप आई एम क्लियर। सो कन्फ्यूजन है कोई? नहीं सर। ओके, सो इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो जो फ्लो चार्ट देख रहे हो वो मुझे चाहिए एक्चुअली तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट गिव मी सम टाइम। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजेस। तो इंडेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, तो उसका तो कुछ तो यूज़ तो होगा, वरना ऐसे ही थोड़े ना पढ़ेंगे हम लोग, ऑब्वियसली। सो व्हाट आर द यूजेस? यूजेस से क्वेश्चंस आते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन से फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है इंडेक्स नंबर, तो आंसर होगा बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। फर्स्ट यूज लिखो, टू ट्रैक
changes in economic indicators like inflation, GDP, and consumer price level. ज़्यादातर मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ आता है कभी कभी। इकोनॉमिक्स कहाँ पर यूज़ होता है? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ज़्यादातर यूज़ होता है, बिकॉज पूछता है कि इंडेक्स नंबर इज यूज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस स्टडीज़। तो इसलिए तो मैं जितना भी एप्लीकेशंस तुम लोगों के लिए लिखवाऊँगा वो ज़्यादातर इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू इवालुएट बिजनेस परफॉर्मेंसेस। To evaluate business performances over time। जैसे कि मान लो सेल्स ग्रोथ, और प्रोडक्शन एफिशिएंसी। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखो, टू एनालाइज। These are very self-explanatory. I hope you are understanding the performance of stock markets। ये भी बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस स्टडीज रिलेटेड। फिनेंशियल स्टडीज़, फिनेंशियल मार्केट्स भी कभी कभी बिजनेस ना देखे फिनेंशियल मार्केट्स भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना। एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीशंस। और एक पॉइंट को इधर लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। या फिर से इकोनॉमिक एप्लीकेशन में आ चुके हम लोग। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और भी बहुत यूजेस है। मैंने कोशिश किया है जितना तक, मतलब इकोनॉमिक रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड, और जो कुछ थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं वो सब पॉइंट्स इंक्लूड करने के लिए। टू स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, mortality rates, and migration patterns। so ये देख लो तुम लोग, पहले थोड़ा ये पॉइंट देख लो। तो क्या क्या है? टू ट्रैक द चेंजेस इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे चेंज हो रहा है? इन्फ्लेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 पीरियड्स में इन्फ्लेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? 2022 से 2023 के बीच में कितने मैग्नीट्यूड में इन्फ्लेशन चेंज हुआ है, वो मेजर करने के लिए। जीडीपी का ग्रोथ कितना तक हुआ है। कंज्यूमर प्राइस लेवल जो कंज्यूमर प्राइस लेवल जो है, जो कि रिटेल प्राइसेस बोलते हैं, उसका और एक नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं उसको हम लोग, और रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। सो रिटेल प्राइस इंडेक्स में कितना, मतलब रिटेल प्राइसेस कितने, मतलब 2 पीरियड्स के बीच कितने मैग्नीट्यूड में फ्लक्चुएट किया है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि टू इवालुएट द बिजनेस परफॉर्मेंसेस ओवर टाइम। सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना प्रोडक्शन हमारा जो प्रोडक्ट का एफिशिएंसी कितने लेवल पे बढ़ा है या घटा है। हाँ,
तो थर्ड पॉइंट बोले टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन. स्टॉक मार्केट का अब स्टॉक मार्केट में अब क्या टेंडेंसी चल रहा है, खराब टेंडेंसी में चल रहा है या बुरा टेंडेंसी में चल रहा है, तो उसमें हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे और इट विल इंडेक्स नंबर विल आल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग कि अभी whether I mean investing some money in that particular stock market situation is feasible or not. Fourth point बोल रहे to understand consumer preferences. Consumer preference, how is the consumer I mean how are the preferences of the consumer regarding a particular good is changing, whether it's changing or it's static. If it's changing, what is the magnitude, I mean what is the magnitude of such change. नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रोथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोर्टिलिटी रेट in India between 2022 and 2023. What is the migration patterns? I mean, how many people are migrating, or what is the increase, whether there is an increase or decrease in migration, and at what magnitude. So ये study करने के लिए we use index numbers. Am I clear? These are very self-explanatory. Is it okay? Shall I proceed? Okay then. So let's now start another concept. So which is also a very important thing, और वहाँ से भी questions आ सकते हैं. So most of the time basic MCQs are asked actually, so don't worry. So next concept होगा problems in constructing index numbers. For constructing index number, mainly statisticians face three problems. There are three problems to construct index numbers, and these are three major issues that an investigator can face. तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम होता है, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आदित्य, तुम बता सकते हो? अच्छा, ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होता है वो डेटा कलेक्शन रिलेटेड होता है. डेटा कलेक्शन. तो डेटा जो होना चाहिए, द डेटा कलेक्टेड फॉर इंडेक्स नंबर शुड बी रिलायबल, and it should also be adequate and accurate and comparable, so as to yield some good, or so as to give us a clear picture of what's happening in the economy or what's happening in the world. Okay, so but to get that data actually one needs to decide ki how many and which categories or which items should have to should we include for constructing the index. Then what will be the data source, where can we source the data, and what should be timing. I mean, if it's timing related, whether we should consider any monthly data points, or we should consider yearly data points, or also the locational aspect also matters, whether we should do the comparison between Assam and West Bengal, or like Bihar and Uttar Pradesh.
So that issue needs to be resolved for constructing an index number. So just try to write with me. Ki, is this point clear? The data has to be reliable, adequate, accurate, comparable, and representative. As possible. ठीक है. So one needs to face, or sorry, one needs to decide point one, how many and which categories of items to include. ठीक है. सॉरी, तुम लोगों ने हैव यू रिटन दिस पॉइंट? If you are saying nothing, then I will take it that you have already written, so I will proceed. Okay. From next issue is from where to collect relevant data, and the third issue is timings of data collection. I mean, it's vital to collect data at an appropriate time. Example, like there is just let me cite an example that vegetable prices. You know about vegetable prices, right? Those prices may vary at different times on the same day. In the morning, you can see that vegetable prices are very high, and in the afternoon, if you visit the marketplaces, then sometimes you will see that vegetable prices are very low relative to the morning prices. So that's fluctuation. I mean, it's totally depend on the time, right? In the morning it's very high, in the afternoon it's very low. So there is a time variation. So the choice of the appropriate time is very much essential while constructing an index. Okay, so this is the first problem, and now we will consider the second problem of constructing an index, which is selecting the base year. What is base year? Anyone wants to comment? ये तो बता दो, ये तो आना चाहिए. क्या होता है बेस ईयर? The year from which we want to compare the today's values or the today's changes. Very good. It is also called the reference period. Okay, ये चीज़ याद रखना. So base year
पहले डेफिनेशन लिख लो, बेस ईयर क्या होता है। ए रेफरेंस पीरियड फॉर comparing and analyzing, for comparing and analyzing the changes in prices or quantities in a given period. सपोज मान लो कि यू वांट टू कंपेयर, सपोज मान लो कि प्राइस in 2003, in 2023 suppose, हाँ, और प्राइस in 2012 मान लो। तो if we consider 2012 as our base year, then this price P 2012 is the base period price. So what is the importance of base year? Base year is trying to tell us, I mean, by considering or the usage of base year is that it will help us to compare, or it can act as a reference point from which the comparison of the variables in different time periods can be made. I mean कि हम लोग बेस ईयर सपोज पकड़ लेते हैं, आई मीन हम लोग चाहते कि हम लोग प्राइस फ्लक्चुएशंस के बारे में हम लोग स्टडी करना चाहते हैं कि ओवर द ईयर्स प्राइस कितना फ्लक्चुएट किया है। सो हम लोगों को एक रेफरल पॉइंट होना चाहिए हम लोगों के पास, ताकि हम लोग उस रेफरल पॉइंट को कंसिडर करके हम लोग देख पाए कि कितना चेंजेस हो रहा है, वेदर प्राइजेस आर इन्फ्लेटिंग और प्राइजेस आर डिफ्लेटिंग। that for measuring that thing we need a referral point. So जैसे कि हम लोग मान लिया कि प्राइस जो 2012 का जो प्राइस था जनरल प्राइस लेवल, उसको हम लोगों ने एक रेफरल पॉइंट पकड़ लिया, और हम लोग अब देख रहे हैं कि 2023 में प्राइस का वैल्यू क्या है, मतलब प्राइस बढ़ा, मतलब वेदर प्राइसेस इंक्रीज्ड और प्राइसेस डिक्रीज्ड और प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, वो चीज़ हम लोग मेजर कर रहे हैं रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ 2012. सो जो 2012 जो बोल रहा हूँ दैट इज़ नोन एज द बेस प्राइस. सो बेस प्राइस क्या होता है? बेस प्राइस इज द रेफरल पीरियड और द रेफरेंस पीरियड using which one can compare and also tries to analyze the changes in the prices or quantities in a given period. ठीक है, am I clear? So next point लिख लो. बेस ईयर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बेस ईयर शुड बी ए नॉर्मल पीरियड. इस चीज़ को अंडरलाइन करके रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो नॉर्मल पीरियड का मतलब when the prices or quantities are neither too low nor too high and free
from abnormal events. Like abnormal events जैसे कि like flood, wars, हाँ, recession, etc. तो बेस ईयर शुड बी नॉर्मल पीरियड. नॉर्मल पीरियड मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो प्राइस, जो उस पीरियड का जो प्राइस, जैसे कि यहाँ पर जो 2012 जो मैं पकड़ रहा हूँ, इसको हम लोग नॉर्मल पीरियड तभी बोलेंगे जब इसका उस टाइम पे 2012 में अगर कोई एबनॉर्मल इवेंट इंडिया में हुआ ना हो, जैसे कि कोई फ्लड नहीं हुआ है, कोई युद्ध नहीं हुआ है, कोई रिसेशन, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हुआ है, या फिर वो 2012 में ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस जो है ज़्यादा बढ़ा नहीं है, ज़्यादा घटा भी नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेबल था प्राइसेस. तो उस टाइप ऑफ पीरियड को हम लोग बेस ईयर पकड़ते हैं जहाँ पर सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल रहे. ठीक है? एम आई गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? Okay, so let's discuss the third issue, and after that I will stop this class. So third issue is selecting a proper index. ये पॉइंट समझने के लिए तुम लोगों को वही इंडेक्स नंबर का कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ कैटेगरीज होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो जस्ट लिख लो कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, टू कंस्ट्रक्ट इन इंडेक्स नंबर, देर आर डिफरेंट वेज एंड there are different indices, and those different indices will give you different results. So proper care must be taken. हम लोगों को प्रॉपर, जब whenever we construct an index, we need to take proper care. We have to take utmost care while constructing it, and the construction of the index should be solely based on the purpose of conducting the analysis. समझ रहे हो ना? सो लिख लो तुम लोग, डिफरेंट indices give different results when applied to same data. ठीक है? Utmost care must be taken while selecting the proper formula. So this is it for today. So hope you guys will study well. So इतना तक समझ में आया ना guys? So let's conclude this session as of now, and as you know that for some period the class won't happen. I am also going, I will also be remain out of station actually. So it's better we will meet after that. So hope you guys will do well, and thank you guys. Okay, bye.